brought to you by RPG Life Sciences, and thank you so much for joining with us today. So we are delighted to host Dr. Alok Kumar. He is an experienced or renowned nephrologist, has over 15 years of clinical experience. He is a professor and head of the Department of Nephrology at Sri Mehanta Indresh Hospital, Dehradun, where he provides specialist care for the patients and renal related disorders. Thank you so much, sir. So today we'll discuss on the diabetes, hypertension, and kidney diseases. We'll have the simple conversations to clear the doubts of patients and family members. So, sir, my first question is, doctor, in simple terms, like how diabetes and blood pressure affect the kidneys. So, indeed, a great question. Both blood pressure and diabetes do affect the kidneys, as we know that all over the world, these are the topmost causes for the kidney diseases. So, what happens that diabetes once set in after a few hours and after a few years, then it will affect the kidneys, and your kidney will start leaking protein which is called albuminuria, and to begin with, it is called microalbuminuria, and which progresses to the then protein rise increase. Patient has swelling, and afterwards, patient will lose kidney function, which is termed as the glomerular filtration rate. So once it is lost, your patient has symptoms and all that will happen, as you know. Besides this, hypertension also does in the almost same way. First, patient has leakage of protein known as albuminuria. Then patient will lose kidney functions. But if both exist together, if you have diabetes and hypertension, then it adds to each other, and the patient has much higher chances of getting kidney disease. So sir, अभी हमारे body में बहुत सारे organ हैं. तो like why kidney is the first organ to affect because of the diabetes and hypertension? So, to say kidney is not the first organ, to be very frank. Actually, diabetes जो है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को अफेक्ट करती है. अगर हम स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे आपको पता होगा हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होते हैं, तो हमारे जो बॉडी का वैस्कुलेचर है उसको इफेक्ट करती है. वैस्कुलेचर बॉडी में हर जगह है, चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी. सो डायबिटीज अफेक्ट वैस्कुलेचर, इसीलिए बॉडी के सारे ऑर्गन में इफेक्ट आते हैं. सो सर, क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाती है बॉडी अगर किडनी अफेक्ट है? अगर हम पहले किडनी की बात करें तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं. आप शुरुआत में केवल टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं. उसमें दो सिंपल टेस्ट हैं. एक टेस्ट को हम लोग कहते हैं एल्बुमिन्यूरिया को देखना. तो एल्बुमिन्यूरिया बहुत सिंपल टेस्ट है. प्रोटीन की जांचने की स्ट्रिप्स आती हैं, उससे आप जान सकते हैं कि क्या यूरिन में एल्बुमिन हो रहा है. और दूसरा टेस्ट, इसको हम कहते हैं EGFR, जो क्रिएटिन की सहायता से नापा जाता है. अपने आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाएंगे, वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट को बोलेंगे तो वो आपका ये टेस्ट, जैसे सीरम क्रिएटिन कहते हैं, वो कर सकते हैं. उससे आपको GFR का आइडिया लग सकता है. तो दो सिंपल टेस्ट आपको बता देंगे, क्योंकि शुरुआत की अवस्था में कोई लक्षण नहीं होगा. आप केवल टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं. ओके सर, आपने टेस्ट के बारे में बताया, तो जैसे आपने बोला कि कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाते, तो लाइक आई एम अबाउट टू आस्क, इट इज पॉसिबल टू हैव अ किडनी डैमेज व्हेन द पेशेंट्स फील कंप्लीटली फाइन? Yeah, you're absolutely right. You can have actually substantial loss of kidney function without any symptom. So this is one of the actually sad part of the story, कि जब भी किडनी पर इफेक्ट होता है, आपके किडनी का लगभग 70-80% काम खत्म हो जाता है, तो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं. सो सर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है तो वो किडनी को कैसे डैमेज करना स्टार्ट करता है? सो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, जैसे कि हमारी बात हुई, हमारा जो किडनी है वो छोटी यूनिट्स का बना है, जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं. उसमें भी वैस्कुलेचर होती है. तो हाइपरटेंशन से वैस्कुलेचर डैमेज होता है, जिससे कि प्रोटीन लीक स्टार्ट होता है. प्रोटीन लीक स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे करके हमारी किडनी का काम, जैसे हम GFR की बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, वो अफेक्टेड होता है. और धीरे धीरे करके सीरम क्रिएटिन का राइज होने लगता है, जिसे हम नापते हैं. सो सर, डायबिटीज में HbA1c का लेवल फिक्स है और ब्लड प्रेशर का भी, तो किडनी रिलेटेड है, तो ऐसा उनका लेवल का कुछ अलग है? ऐसा कहा जाता है अगर किसी पेशेंट को किडनी की फेलियर हो गई है, तो उसको आगे प्रोग्रेशन से रोकने के लिए
दोनों को हमें टाइटली कंट्रोल करना चाहिए। इससे आपने सुना होगा तो HbA1c हम लोग भी कहते हैं सभी पेशेंट्स को 7 या 7.5 से नीचे रखना चाहिए। और ब्लड प्रेशर ऐसा कहा जाता है जिनको की किडनी डैमेज हो गया है उनको ब्लड प्रेशर के लेवल 130 और 80 के नीचे रखना चाहिए। जैसे कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर मरकरी, इससे नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। Okay. So, sir, why doctors worry so much about nighttime or nocturnal blood pressure? ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि जो नॉक्टर्नल ब्लड प्रेशर होता है ये एक बेटर मार्कर है हमारे बॉडी में ऑर्गन डैमेज का। जैसे कि आप जानते हैं हाइपरटेंशन से हार्ट पर, किडनी पर, ब्रेन पर सब पर डैमेज होता है। तो ये ऐसा देखा गया है कि काफी मरीज ऐसे होते हैं जिनका कि ब्लड प्रेशर दिन में नॉर्मल रहता है पर रात के समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सोते समय। और खासकर ये ज्यादा होता है जो जिन मरीजों को की किडनी की परेशानी। तो अगर ब्लड प्रेशर रात में ज्यादा बढ़ता है तो आपकी ऑर्गन्स पर डैमेज ज्यादा होता है। तो इसीलिए नॉक्टर्नल राइज ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नॉर्मल लोगों में ब्लड प्रेशर सोने के समय कम हो जाता है। ओके, सो सर आप अपने पेशेंट को क्या रिकमेंड करते हैं? लाइक डायबिटीज कितने दिनों के बाद चेक करना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल, और बीपी कितने समय के बाद चेक करना चाहिए? डायबिटीज है उनको अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करने की आवश्यकता है। अगर कंट्रोल नहीं है तो आपको डेली अपने घर में ग्लूकोमीटर की सहायता से रोज खाने से पहले, खाने के बाद और हर मील्स के 2 घंटे बाद चेक करना चाहिए। एक बार स्टेबल हो जाए तो आप उसको बीच बीच में कम कर सकते हैं। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर को जब तक कंट्रोल नहीं है तो जरूरी है कि हम एटलीस्ट दिन में 2 बार अपने घर में नापें। और जब कंट्रोल हो जाता है तब हो सकता है आप उसको 5-7 दिन में एक बार देखें तो आपको आइडिया रहता है कि ब्लड प्रेशर आपका किस रेंज में चल रहा है। सर लाइक ऐसा कुछ है कि अगर डायबिटीज, ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल है तो वो कितना डिले कर सकता है किडनी डिसीज, या हो ही नहीं सकता है किडनी डिसीज? देखिए कि अगर हम डायबिटीज की बात करें तो दुर्भाग्यवश डायबिटीज के जितने भी मेथड्स अपनाते हैं, डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, पर इसके बाद भी मरीजों को किडनी फेलियर हो जाती है बिकॉज ऐसे कुछ और कारण है जो भी हम लोगों को पता नहीं है। पर लेकिन फिर भी अगर हम दोनों को कंट्रोल करें तो हम काफी हद तक मे बी करीब 70-80% तक लोगों को रोक सकते हैं किडनी फेलियर होने से। सो सर हम लोग अभी मेडिकेशन पे आते हैं। like which medicines are known to protect the kidneys in diabetes and hypertension? देखिए जो अगर हम डायबिटीज की बात करें तो उसमें जो नई मेडिसिन आई हैं उनको स्पेशली हम लोग कहते हैं SGLT इनहिबिटर्स। तो SGLT इनहिबिटर्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग्स जिनको कि देखा गया वो किडनी फेलियर के मरीजों को भी फायदा पहुंचाते हैं, हार्ट फेलियर भी फायदा पहुंचाते हैं। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की बात करें तो एक ड्रग का क्लास है जिसे कहते हैं ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये भी काफी सहायता करती हैं किडनी फेलियर को रोकने में। ऐसा कहा जाता है कि आजकल सभी मरीजों को इन दोनों दवाओं को जरूर सम्मिलित करना चाहिए अपने उपचार में। ओके सर, अभी थोड़ा डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में बताएं। कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम डाइट नहीं प्रॉपर यूज करेंगे तो हमारा ब्लड शुगर कभी कंट्रोल नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लोग जो है अपने भोजन में शुगर की मात्रा कम रखें, सॉल्ट की मात्रा कम रखें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कम रखें, ये बहुत जरूरी है। और अपना जो हमारा बॉडी वेट है उसको कोशिश करके आइडियल बॉडी वेट के आसपास रखें। और ब्लड प्रेशर के मरीजों में आवश्यक है कि जो इनको हाइपरटेंशन है उनको भी मुख्यतः कहा जाता है कि वो लोग सॉल्ट का इंटेक कम करें और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जो आइटम्स हैं उनको कम करें। सर अगर किडनी डैमेज को इग्नोर किया जाए तो वो कितने क्विकली कन्वर्ट करता है CKD में? नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली किडनी डैमेज की, हाँ। तो जैसे कि अगर हमने किसी पेशेंट को जाना कि उसका GFR शुरुआत में हमने उसको जान लिया कि उसका GFR 50 पहुंच गया है, क्रिएटिन थोड़ा बढ़ गया है, तो अगर हम कोशिश करें और मरीज को दवाइयाँ शुरू कर रहे हैं और मरीज का बीपी कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब कर लें तो हम पेशेंट को एंड से किडनी डिजीज तक पहुंचने से काफी लंबे समय तक रुक सकते हैं, जो हो सकता है 15-20 साल तक हो जाए। पर यदि कोई व्यक्ति ये सब नहीं करता है तो हो सकता है वही किडनी डैमेज 2-3 वर्ष में ऐसा हो जाए मरीज को डायलिसिस या गुर्दा पत्थरों की आवश्यकता पड़े। सो अगर सर अर्ली किडनी डैमेज की हम लोग बात करें, अगर हमें अर्ली किडनी डैमेज डिटेक्ट भी होगा तो हम लोग उसको कंट्रोल या रिवर्स कर सकते हैं?
देखिए, अर्ली किडनी डैमेज अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार अगर एल्बुमिन आना आरंभ हो जाता है या क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, बट लेकिन डेफिनेटली प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किडनी डिजीज एक बार एस्टैब्लिश हो जाए तो इरिवर्सिबल। ओके सर, अभी जो किडनी डिसीज है वो डायबिटीज में कैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाती है? जब किडनी डिजीज होने से एक तो जैसे हम जानेंगे किडनी फेलियर ऑब्वियसली हो जाएगी। उसके अलावा ऐसा देखा जाता है जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं उन सभी को हृदय रोग की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अधिकतर किडनी डिजीज के पेशेंट्स की मृत्यु हार्ट की डिजीज से होती है। उनको अगर हम देखा जाए तो हृदय की बीमारियों का खतरा अन्य मरीजों की तुलना में करीब 50 से 100 गुना ज्यादा होता है, 50 to 100 टाइम्स, जो कि किडनी के पेशेंट्स। और सर कोई अभी प्रिवेंशन के बारे में कुछ बताओ कि हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो किडनी डिजीज प्रिवेंशन के लिए हमने जैसे कि बात की, दो प्रमुख कारण है, ब्लड प्रेशर होना बढ़ना, हाइपरटेंशन कहते हैं, और शुगर बढ़ना जैसे कि लोग डायबिटीज कहते हैं। तो अगर अब इन दोनों को रोक पाए, तो जिसमें कि आजकल के हमारे लाइफ स्टाइल का बहुत ज्यादा रोल है, तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम लोग फास्ट फूड से बचें, अपने वेट को नॉर्मल रख पाए, स्ट्रेस से बच पाए, तो काफी हद तक अगर ये दोनों बीमारियां रुकेंगी तो हम लोग किडनी फेलियर को भी रोक पाएंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम एस कहते हैं। तो हमको स्वीट्स, सॉल्ट और स्ट्रेस, सैचुरेटेड फैट, इन चारों इसको कम करना चाहिए। Thank you, sir. Thank you very much for clearing all doubts and this wonderful conversation, which definitely help to the patients and caregivers. So, sir, any concluding remark? आप कुछ conclude कर दो सेशन को या कुछ संदेश देना चाहते हैं? और सबसे जैसे कि महत्वपूर्ण लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि आज की जीवन शैली प्रमुख कारण है, मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को सबसे जरूरी है, जो पुरानी कहावत है कि हम अपने आहार को संतुलित रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।